आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, जिसने अब भारत की राजनीति में तहलका मचा दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट आने के बाद सेबी और उसकी प्रमुख माधवी बुच विपक्ष के निशाने पर है। इस मामले में अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर निवेशकों के गाढ़ी कमाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जिसके बाद उनके इस बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। हिंडनबर्ग के हालिया आरोपों के बाद एक बार फिर से देश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि रविवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय शेयर बाजारों में काफी जोखिम है और सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उसके पति धवल बुच की कथित अडानी मनी साइफन घोटाले में शामिल ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, सेबी अध्यक्ष होंगी या फिर गौतम अडानी होंगे? Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcome? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास को कम करने का यह जबरदस्त प्रयास राहुल गांधी के असली इरादे को उजागर करता है, जो भारत के विनाश के अलावा और कुछ नहीं है। मालवीय ने आगे कहा कि 3 जनवरी 2024 को CGI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि सेबी द्वारा कोई जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया था। इसके अलावा इस मामले में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक सुनियोजित हमला प्रतीत होती है।
ऐसा लगता है एक व्यक्ति एक पार्टी का विरोध करने के लिए राहुल गांधी और उनके पूरे तंत्र की पूरी अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने और अस्थिर करने में कोई हिचक नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का एजेंडा केवल दहशत और अस्थिरता पैदा करना है ताकि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा की जा सके। Hindenburg report seems to be like a well-planned, well-orchestrated hit job on the basis of a report which is filled with contradictions, falsehoods, by a discredited organization like Hindenburg, whose only job is to do short selling, create panic and then profiteer out of it. It is already under investigations in India for this. It is also facing investigations in America for this. But even then, the likes of Mr. Rahul Gandhi and his ecosystem ignore what the Supreme Court has said about the first Hindenburg report. The fact that the Supreme Court thrashed that report, it thrashed the PILs relating to that report, that it upheld the SEBI probe and said that the SEBI probe inspires confidence. All of this is put aside by Rahul Gandhi. Does Rahul Gandhi want to imply then that the Supreme Court is also hand in glove? Is Rahul Gandhi raising questions on the integrity of the Supreme Court? The question is that why is this being done? It seems that for the sake of opposing one person or one party, Rahul Gandhi and his entire ecosystem have no qualms in damaging and destabilizing the entire Indian economy and financial systems. And therefore we see time and again that whenever parliament session is close by, a foreign report is manufactured, usually based on falsehoods, and is lapped up by Congress and its ecosystem. Whether it's the Pegasus report, whether it is the Hindenburg 1 report, whether it is the report on Rafale, whether it is the BBC documentary. What is this relationship that Rahul Gandhi has with these foreign reports and their makers? Rahul Gandhi is the same person who peddled lies about LIC, HAL, SBI, that all of them would be totally damaged and destroyed. Today, SBI, LIC and HAL all are thriving. It seems that Rahul Gandhi's agenda is only and only to create panic and instability so that a Bangladesh type situation can be orchestrated in India. वहीं हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर विपक्ष मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन करने की मांग कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक और बात साबित करती है जिसके बारे में पूरा विपक्ष बार बार कह रहा था कि जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि सेबी ने जिस तरह से जांच की है वह संतोषजनक नहीं है और अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर सेबी बार बार समय मांग रही थी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि सेबी की चेयरपर्सन का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मामले पर बीजेपी और सेबी पर जमकर निशाना साधा है। जो कल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो एक और चीज साबित करती है और जिसके बारे में सारा ही विपक्ष बार बार कह रहा था कि जो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि सेबी ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है और बार बार वो सेबी जो है समय मांग रहा था अडानी ग्रुप कंपनीज को लेकर। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि जो खुद चेयरपर्सन है सेबी की, उनका भी नाम अभी शामिल हुआ है। सामने खबर आ रही है किस तरीके से क्विड प्रो को हुआ है। तो इससे और भी हम मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और खास करके जो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई है कि सेबी शांत रहा, सेबी ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अडानी समूह को लेकर कैसे उनका इनडायरेक्ट वहाँ पे इंटरेस्ट थे। तो ये जो इंटरेस्ट लिंक्ड हैं, जो क्विड को प्रो कोर्ट है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हम ये और पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पार्लियामेंट में भी इसकी जांच होनी चाहिए। क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। एक महाघोटाले की जांच करने वाले संलग्न
और खैर उनकी नियुक्ति करने वालों की अभी हम बात करते हैं। एक बात और साफ है कि इस पूरे खुलासे ने सेबी चीफ, इस देश की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटेग्रिटी को तार तार करके रख दिया है। उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं बची है। उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर जबरदस्त सवाल है। आपको बता दें कि सेबी की चेयरपर्सन और अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा कि हिडनबर्ग की ओर से यह ताजा बयान सेबी द्वारा परिवर्तन कार्रवाई करने और जुलाई में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हिडनबर्ग का यह आरोप सेबी पर जो लगाया गया है वह कितना सच साबित होता है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।